force and couple acting on a current carrying coil which is being placed in a uniform magnetic field. So I'm making a diagram, there is a diagram to see that. Suppose there is a rectangular coil I'm taking here. A rectangular coil is being placed in a uniform magnetic field, right? And suppose this is the midpoint में पहले लेता हूं बच्चों, ये midpoint मैंने ले लिया, और जिससे कि ये डायग्राम थोड़ा सा आपको क्लियर हो सके जरा, तो ये this is the magnetic field, uniform magnetic field is here. The magnetic field is B, and suppose this coil, current carrying coil, current clockwise हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज. सपोज हम करंट ले लेते हैं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज. करंट इज फ्लोइंग इन दिस वन and this is making an angle of theta with the magnetic field. Let L be the length and B be the breadth of this current carrying rectangular coil. बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम कॉइल यहां पे ये नहीं कहा गया था टॉपिक में कि कॉइल हमने कैसा लेना है, राइट? ये चॉइस था हमारा, टेकन द रेक्टेंगुलर कॉइल हियर, राइट? एंड the length is L and breadth is B, this is making an angle of theta with the magnetic field, right? ये बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको मैंने दिखाया है तो आप जिस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड है सपोज कीजिए, जैसे मैंने दिखाई है, और ये कॉइल इस तरीके से रखी हुई है, इस तरीके से रखी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पास हुआ है. तो ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इट इज प्लेस्ड. Now what will happen? Will it experience any force or will it experience any couple? We have to discuss. Now you know that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. The force, the direction will be obtained from the Fleming's left-hand rule, while the magnitude can be obtained by using the formula F equal to ILB sin theta. We will use that formula to find the forces on the various parts of this rectangular coil, right? Suppose first we want to find the force on this one, on this part, right? This breadth. Then first we'll go to the direction, right? What will be the direction of force? तो आप ध्यान दीजिएगा ये बार बार कि हम चूंकि ये डायग्राम 3 डायमेंशनल फिगर है, तो हम इसको इस तरीके से यहां पर ये ले रहे हैं, और करंट यहां पर इस तरीके से जा रही है. करंट इस तरीके से इस कंडक्टर में है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है. We will use the Fleming left-hand rule for the direction, right? So magnetic field is here, and you see that magnetic field is here, current is flowing along this one, and the force will be downwards, right? So force will be downward. The force on this conductor will be downward. Suppose this force is F1, right? We can find the value by using the formula. First, F1 will be equal to, formula apply करना है बच्चों. Current is suppose I is the current flowing, suppose, then I into length means here the breadth is the length here, IB into capital B into sine of angle कौन सा बच्चों? ये एंगल, and obviously this angle is theta, so this will be theta. एंगल किसके बीच में हमने लेना है? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंथ, और लेंथ का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? करंट के डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में. ये एंगल है, हमने ये ले लिया, एंड दिस इज perpendicular in the plane of the coil, in the plane of coil, and vertically downwards, right? This is the force acting on this part. Now we come to this part of length, right? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये इस तरीके से है और हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं. इस पार्ट में
फोर्स का डायरेक्शन पहले देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और आप देख रहे हैं कि करंट इस तरफ है। ये देखिए, ये इस तरीके से हम करेंगे, यहां पर ऐसे देख लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, फोर्स इधर को लग रहा है, राइट। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स। अब इसको दिखाएं कैसे डाउनवर्ड है, तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, यहां पर सेंटर पॉइंट पर ऐसे दिखा देता हूं इस तरीके। सपोज दिस इज F2। Now F2 will be equal to here I into length is L, magnitude is B, sin, angle किसके बीच में, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि करंट के डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और वो एंगल ऑब्वियसली यहां पर कितना है 90 डिग्री। सो इट विल बी ILB एंड दिस विल बी perpendicular to the plane, perpendicular to the magnetic field and downwards, right? So this is F2. Now we come to this part, right? ये देखिए बच्चों, ऐसे है, करंट ऐसे जा रही है इस तरीके से, तो यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट हमारी ऐसी आ रही है, देखिए इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट इधर की ओर है इसमें, और फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा फोर्स इधर लगेगा, एंड दिस विल बी F3। नाउ F3 विल बी इक्वल टू I into the length that is B into B sin of किसके बीच में एंगल, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। लेंथ मींस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि करंट के डायरेक्शन में जो लेंथ है ये, और मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल लेना है बच्चों। This angle will be sin, कितना हो जाएगा 180 minus theta, right? So this will be IBB sin of theta. 180 minus theta means sin of theta, and this will be in the plane of the coil, and vertically upwards. Right? Now the force on this part, right? This part, you see that this is vertical one, ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे है, करंट इस तरीके से देखिए ऐसे, ये मैग्नेटिक देखिए ऐसे जा रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये इस डायरेक्शन में। अब इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं यहां पर इस तरीके। दिस इज सपोज F4 will be equal to I into L into B into sin 90, समझ गए होंगे, and this will be ILB, and this will be in the plane in perpendicular to magnetic field and upwards, right? These are the various forces acting on the various arms of this rectangular coil. हमने आई और बी साइन थीटा का फॉर्मूला यूज किया, डायरेक्शन हमने देख लिया, ये सारी चीजें हमने कर ली, इतने फोर्सेस लग रहे हैं। अब हम इनका कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं। सो फर्स्ट यू सी दैट हियर दिस F1 and F3, you see that these two forces are acting along the same line, and these have the same magnitude but opposite in direction. F1 और F3 कैसे फोर्सेस हैं, जो इक्वल है मैग्नीट्यूड में। यू कैन सी दैट F1 and F3 इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, एंड हेंस देयर इफेक्ट विल बी जीरो। द नेट इफेक्ट ऑफ दिस फोर्सेस विल बी निल। तो ये फोर्सेस का कोई नेट इफेक्ट कॉइल पर नहीं पड़ेगा, राइट? Now we come to F2 and F4. Now you see again that F2 and F4, these are also equal in magnitude, opposite in direction. ये downwards है, ये upwards है। ये forces जो लग रहा है, ये downward लग रहा है और ये upward लग रहा है। So these forces are also equal in magnitude, opposite in direction, but their line of actions are different. इसका line of action ये है, इस line पे act हो रहा है, और इसका line of action So in this case, when the line of actions are different, the forces are being equal in magnitude, opposite in direction, they will form a couple, right? And here the tendency of the couple to move this coil anti-clockwise, इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा,
So these forces will form a couple. However, the net force again will be zero. अगर नेट फोर्स कहा जाए कॉइल पे तो नेट फोर्स कितना होगा बच्चों? नेट फोर्स अगर हम बात करें नेट फोर्स विल बी जीरो. बता दिया मैंने रीजन. नेट फोर्स नहीं होगा, या आगे ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं होगा, या आगे मूव नहीं करेगा, बट देयर विल बी a couple because of the forces F2 and F4. Now we want to find the couple, right? So couple we can find here as tau equals to, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, जो आपने 11th में पढ़ा होगा. Either force परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू आइदर फोर्स. परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं, ये इस तरीके से, ये हो गया परपेंडिकुलर फोर्स, यानी ये एंगल भी थीटा होगा, ये यहां पर यहां से यहां कितना है? b है. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब जो दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर हो, इसके परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर, ये लेंथ हुई, दैट इज b cos थीटा. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको मैं अभी दे रहा हूं फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस into either force. This is the basic formula, right? So perpendicular distance is here b cos theta, right, into the force. Force means either force. दोनों F2 और F4 दोनों इक्वल हैं, आप देख लीजिएगा. ILB, it will become ILB, right? Now you see that here b into L, अगर b और L को आप एक साथ दे लें, ये B और L को आप एक साथ दे लें, ये B और ये L को अगर आप एक साथ दे देते हैं तो B इंटू L क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया. इट विल बिकम एरिया. सो इट विल बी IAB cos theta, right? Now we can generalize this formula. If the coil has n number of turns, then it will become tau equals to NIAB cos theta. लेकिन बच्चों ये किसी वजह से, एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर, इस वजह से ये फॉर्मूला परफेक्ट नहीं है. परफेक्ट क्यों नहीं है उसकी बात मैं करूंगा आगे, लेकिन आप एक बात समझिएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं. असल में ये जो NIA टर्म है, ये आगे चल करके बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और इसका डायरेक्शन होता है, राइट? और डायरेक्शन कैसा होता है मैं यहां पर अभी ऐसे ही बता दे रहा हूं, आगे हम फिर बात करेंगे डिटेल में इसकी. इसका डायरेक्शन हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. अगर ये कॉइल है परपेंडिकुलर या तो ऊपर की हो या नीचे की हो, राइट? तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पर यही रखता हूं तो थीटा एंगल हो जाएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. और जबकि ऐसा यहां पर नहीं है, यहां तो कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा, फिट नहीं होगा. जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि थीटा एंगल हमेशा उन दो वेक्टर के बीच में होगा. तो एक काम करना पड़ेगा, इफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड. अब ये जनरलाइज कर लेते हैं इसको, अब ध्यान लीजिएगा, मैं यही बता देता हूं. इफ परपेंडिकुलर टू प्लेन makes an angle theta with MF, then ऐसा हम एक वजह से कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा आगे चलके. ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऐसे है, इससे एंगल थीटा बना रहा है, राइट? तो यहां पर जो हमारा एंगल है वो कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में कितना हो जाएगा? दैट विल बिकम 90 माइनस थीटा. ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए, और ये परपेंडिकुलर प्लेन है, उसके बीच में एंगल थीटा है, तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा. इसलिए मैं यहां पर करने जा रहा हूं टाउ इक्वल्स टू NIAB cos 90 माइनस थीटा. देन इट विल बिकम टाउ इक्वल्स टू, और ध्यान रखिए बच्चों, ये NIA एक टर्म बनाता है जिसको मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं. इसलिए मैं ऐसे लिखता हूं MB sin थीटा, वेयर M इक्वल्स टू NIA. ये फॉर्मूला कपल का हो गया है. इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा क्लियरली समझ लें. कोई भी कॉइल किसी भी शेप की हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है, जो आप याद रखेंगे. नेट फोर्स हमेशा जीरो, बट इट एक्सपीरियंसेस ए कपल. द फॉर्मूला इज टाउ इक्वल टू MB sin थीटा. M क्या है? M इज मैग्नेटिक मोमेंट. It is called magnetic moment of the coil, right? Magnetic moment का डायरेक्शन जो होता है,
ध्यान रखिएगा, ये हम आगे क्लियर करेंगे एग्जैक्ट डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि आगे हमने इसको पढ़ना भी है। मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, हमेशा प्लेन कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, राइट। अगर ये कॉइल ऐसे रखी हुई है तो इस तरीके से होगा, इधर होगा या इधर की ओर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन होगा। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी। अब आप कह सकते हैं थीटा एंगल है एम और बी के बीच में, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि परपेंडिकुलर तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा। एम इज NIA, एम मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज करंट, ए इज एरिया ऑफ द कॉइल। So this is all about this topic, right? So this is also very important topic. Various forces, हमने क्या किया यहां पर, फॉर्मूला जो था वेरियस कंडक्टर्स पर फोर्स लगने का, उसको अप्लाई किया। हमने नेट फोर्स देखा क्या लग रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहां पर कपल लगता है। यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, राइट? So next time we will discuss the Ampere circuital law. Thank you.